Rohan, we are waiting. We are live, sir. Please. Ma'am, we can begin now. I can start? Yes, ma'am. Yes, ma'am, we can begin. So, respected Mamata ji and the Chief Minister, welcome and good afternoon to you all. We all seem to be getting used to this mode of communication. And who knows when we will be able to communicate directly. Well, there are a number of important issues that are related to center-state relations. And since Parliament is expected to meet in less than 3 weeks, I think, I thought that we should have an interaction so that we can have a coordinated approach. GST compensation seems to be a big issue. Compensation being paid to states on time according to laws passed by Parliament is crucial, and I know it is not happening. Dues have accumulated and the finances of all the states are badly affected. Now, GST, as we all know, was enacted as an example of cooperative federalism. The GST regime came into existence because the states agreed to forego their constitutional powers of taxation in the larger national interest and on the solemn promise of compulsory GST compensation for a period of 5 years. In the meeting of the Standing Committee of Finance on the 11th of August 2020, the Finance Secretary, Government of India, clearly stated that the central government is not in a position to pay the mandatory GST compensation of 14% for the current year. So this refusal to compensate the state is nothing short of betrayal on the part of the Modi government, betrayal of state governments and of the people of India. So on the other hand, the central government continues to profiteer from unilateral cesses which are not shareable with states, and they corner this revenue. On top of that, apart from the GST, which is a burning issue, ordinances have been issued without consulting the states on agricultural marketing. I know that our Chief Minister from Punjab, Chief Minister Amrinder Singh, has already highlighted how these will destroy the MSP, the regime, and adversely impact on the PDS as well. There has been also a national outcry against the draft EIA notification 2020, which is deeply anti-democratic. Laws meant to protect the environment and therefore livelihoods and public health are being weakened. The auction of coal mines too has been objected already by some chief ministers. Public sector assets created over decades are being sold off. Here too, you all know that some state governments have expressed their opposition. 6 airports have been given into private hands, and the railways, that is the lifeline of the country, they are also being privatized. There are other announcements like the national education policy that should really worry us, because, and it is a setback, it is actually a setback of, for progressive, secular and scientific values. And it actually displays
It reveals the insensitivity of what the states have been saying. There are other problems of students and examinations. These are also being dealt with uncaringly. Now there are many more issues, and I'm sure you are much more aware of them than I am. So I think I would stop here and hand the meeting over to Mamata ji. Sonali, thank you so much for calling this meeting, especially at this crisis time, and when our students, community especially, they are facing a lot. Even they are totally in their uncertainty, they have their mental agony, they do not know. Government already announced that G and NEET exam will start from 1st to 6th and 13th. But how they will give the examination, I do not know, because more than 25.50 lakh students are involved. Even more than 4,500 to the centers are already there. Rail is not working properly. Aviation also there are some problems. Transportation is also not effectively working because of this lockdown system and all this. Now, under this lockdown protocol, when like COVID, a pandemic is going on, then first in the month of April, UGC has sent a letter to the state government that they will defer this exam or they will take some other options. But again, they sent another letter to change that decision, which will harm the students, especially the graduation, post-graduation. And now the G and the NEET, our students and youth, they are very much talented. They are really very brave. They are very bright. And I do not know how they will sit for exam. Yes, I appreciate that government can say that Supreme Court has given the verdict and that's why government is doing all these things. I have appealed Prime Minister, I have requested, I have sent so many letters, but I can show you that yes, I have sent this letter to Prime Minister because of this NEET, G and this exam, other exam. And I requested Prime Minister that if the government can review government can request the Supreme Court when students community are in a serious situation. Even some people are facing the depression also. It is a mental agony. Then Government of India can appeal Supreme Court, Honorable Court to review the appeal so that students community, they feel they are not being harassed or they are not being deprived or they are not going for the mental torture or depression, what is going on right now, whatever we are getting the information from the grassroots. And now that is the option is there. Even with the state government, especially Punjab, Maharashtra, this Jharkhand, Puducherry, then we have the Rajasthan, and also we have the other state government also. Whoever will support it depends on them, but whoever present is there today. We can also, if the law permits, we can discuss this matter with our senior advocates. There are so many important advocates they are always helping us, maybe Abhishek Singhvi or Kapil, or there are so many important advocates in these countries are there. So who are experts in this field, we may discuss the matter with them. And Bengal is there. If Punjab Chief Minister can take initiative, Punjab, Maharashtra, Jharkhand, Puducherry, Rajasthan and others, then we can also jointly appeal. It may be that Supreme Court may say that we have already given the direction. But sometimes we have seen there are some precedent also that if the problem is there, if the situation is some sensitive, then of course they always give consideration to the people's voice, students' voice, because students and youth, they are the future, they are the asset of this country. So we also may appeal the Supreme Court if central government feel
not to appeal, then we as a state government, because we are also elected government, this will be my request to all the state government. Let us do it together. Let us go to Supreme Court and let us request them to postpone it for the time being unless the situation allows students to sit for exam. And more than 25.50 lakhs, it is not a joke. Even G, there is a system for online exam, but medical, no. From where they will be coming, where they will be going, how they will be going. Even mentally also, they are not prepared for this. Now all the educational institutions are closed. So at this situation, that will be my first appeal to all of you. I am thankful to Saniaji for convening this meeting today, because it's a very serious issue. I thought what we discussed about COVID, this is also an important issue. Education issue is a very important issue, and we stand by our students. We salute to our students and you, and we are stand by our students. Whatever they require the help, we are willing to do it. This is number one. Every chief minister must come forward and we must work together. Number two, what Soniaji said, 100% I can assure you, yes, we are fighting the battle. Whatever they are saying nowadays in the name of cooperative federalism, the state government is being bulldozed like anything. In every meeting, your chief ministers ask the other chief ministers, I raise my issue every time. Now state where the money will be coming? Our tax, we are giving to the central government. They are collecting from state government. Earlier, there is a planning commission. States should meet with the planning commission and they should decide their policy. Now nobody is there. Now nobody is talking even. GST, of course, from my government, I can tell you, 4,100 crores, I have to get it within month of May, June, but I have not yet received. So how do we run the government? COVID, the pandemic is going on. And now we are not getting one single paisa. From how we will go for expenditure. We have to give for safe house free of cost, treatment free of cost, medicine free of cost, ventilator free of cost, nasal oxygen free of cost, even their ambulance free of cost. Everything we are giving free of cost. Even the migrant workers, they came. We gave their ticket, the expenditure. We are trying our best, madam. But the problem is that we are not getting anything. They are saying so many things. Sometimes finance minister said we are giving this thousands of crores, lakhs of crores, but where is the money? The same thing, they are repeating and repeating. Even we requested all the chief ministers who are present, they know that FRBM system, madam, there is a FRBM system of financial discipline. We said that when we allow, we said that Japan can use 20% for that, purpose, FRBM. They are giving GST, the system. Now America also spending 10% GST for COVID. Now UK is also spending 20% GST for COVID. Now India, it is, I do not know, 1 or 2%. Even we said that, okay, if you give 5% also, 2 to 5%, then allow us without condition. Now they have given condition. I have to go to market for, in the name of so-called reforms. I have to, increase the taxes of the people. I have to increase the municipality tax. I have to increase this and this and this, and whatever they will say, they will impose the tax to us, and then only we will get that money. Otherwise, no. So where the money will come? Will it come from the sky? I'm telling you that we are trying our best. It's very difficult to give the salary to the workers. No fund is available. It's very difficult. Even the unorganized sector is suffering a lot. The MSME sector to farmers to unorganized sector. Nothing is there, no help. Only big speech is coming up. And if we want to say something, then of course, there are so many agencies. They will be surrounded by us. Let them. But what to do? Two options are there. Either you fight for the people, and if you don't fight for the people, then there are so many friends, they are just surrounded by us.
how they can disturb us. I have not seen in a democracy this type of atrocities. I'm sorry to say, it's most unfortunate part of today. We are facing an acute crisis. We cannot speak. We cannot speak out. We cannot speak freely. The media cannot speak. They are also being guided what to speak, what not to speak. Spending lots of money against of us. Now from Facebook to everywhere. The fake news, the distorted news to damage the opposition, especially opposition who are in the opposition, like anything. So they don't care. Nowadays, I have not seen even other thing I want to tell you, madam, just one thing. After that, other friends will speak out. I have seen after Rajiv's death, when I was a youth minister, that time I started one Rajiv Khel Ratna Award. But Rajiv's name, there was no scheme like this. The other scheme, never they have done it. Even other prime minister also I have seen. Only Indiraji's time I have seen Indira Awas Yojana. Mahatma Gandhiji's name, this Narega. And now every scheme, the condition is state government will give half funds, central government give half funds. But name of the scheme, they will decide and they will impose. We have to share all the data to them so that they will send letter to every individual. State government is not doing anything. State government is doing faltu work. Nothing is there. Only BJP is working. Nobody is working. This is going on. Horror is going on. So I think it is good that we are sitting here. But today we have to decide regarding our funding, whatever we decide, and our state government, we want our funds to come out. It is we deserve it. It is not that we are begging. We are not going for begging. From my state, I can tell you 53,000 crores I will get from the central government. They are not giving us. Even Amphan, you have seen this big cyclone. 1,000 crores they have given only just advance. Nothing is there. Even disaster management fund is being finished. Nothing is there. So this is the situation. Situation is very, very serious. We have to work very hard and we have to take risk also. If they want to arrest us, let them arrest. I don't mind for that. But we have to speak for the people. That's why we have decided for students matter also, madam. If with the state government, I have requested Prime Minister to appeal the Supreme Court. It is yes, government can do it through their Attorney General or their Solicitor General. If they don't do it, of course, from our side, we can appeal Supreme Court, and also we can go for some movement also, the public movement. Everywhere Mahatma Gandhi's statue is there, at least on behalf of the students, we can go for a day, dharna, strike, something. That will be my request to all of you. I think I have discussed something. So other state government is also fighting the battle like anything. Now, Shaniaji, you may conduct the meeting. Why don't you carry on conducting the meeting, Mamtaji? You're a senior leader. No, come on. I know that you have to go earlier, so you can conduct it for a while and then I'll take on. That is my privilege. I am honored and I am really privileged when you allow us to do it. But I think when you are present here, I think it is better if you can. First time I can announce and then you can do it. All right. I will be sitting here with you. First, may I request Shibu Sorenji? Sorry, Hemant Sorenji. I have seen him. I have seen his face. Sorenji, बताइए, फरमाइए क्या बोलना है? मैं बोलूं? हाँ बोलिए. आपका पिताजी ठीक है ना? तबीयत ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम बहुत अच्छे हैं. He is now shifted to Medanta, Delhi. He is fine now. बोलिए हेमंत. Mother, father, both are positive now. Yes, yeah. I know. That's why I asked about father. But father is okay, but old health medical issues थे, so that उनको हम लोगों ने transfer किया है दिल्ली. Otherwise nothing else. Fine. बताइए सुमित ऋषिपति.
हेमंत जी कैसे हम कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। सीबीडी का नाम यहाँ मैं सॉरी चाहूंगा भी, थोड़ा सा मैं पहले भी आप लोगों से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि दीदी को हमने सुना भी, कुल मिला करके उसी तरीके से हमारी भी बात है। आज की इस बैठक में आदरणीय सोनिया गांधी जी, विभिन्न राज्यों के सभी मुख्यमंत्रीगण, हमारी ममता दी, सबको मेरी तरफ से आज की इस मीटिंग के लिए बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन के साथ अपनी ओर से प्रणाम जोहार करता हूं। और एजेंडा तो मुझे विशेष नहीं मिला है, लेकिन जो बातें हो रही है प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर के, दीदी ने पूरी बातें कही, लगभग पूरी इलैबोरेट करके उन्होंने कही है। ये बात सही है मैडम कि देश की स्थिति तो बहुत अच्छी है, कही जा सकती है। और एग्जाम को लेके जो बातें आई, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हम लोगों को मदद मिलता है उससे जीएसटी का जो विषय आया, वो सारी बातें आ गई। वही हाल कमोबेश हमारे राज्य में भी है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद हम ये कहने से हमें हिचक नहीं होनी चाहिए कि विपक्ष हम लोग थोड़ा सा कमजोर होते दिख रहे हैं, चीजों को बहुत जोरदार उठा नहीं पा रहे हैं। और जिस तरीके से सत्ताधारी आज सारे मैकेनिज्म को विपक्ष के विरुद्ध में यूज कर रही है, ये आने वाले समय में फेडरल स्ट्रक्चर के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा घाटा है। और आपने देखा किस तरीके से ये कोविड के सिचुएशन में भी इतने जो माइग्रेंट लेबर आए, उनको राज्य में आने के बाद लगभग 7 वीक्स इनको लगा कि मजदूरों को बहुत परेशानी हुई। 7 वीक्स लग गया। उसके बाद ये किसी तरीके से थोड़ी बहुत एक्ट उन लोगों ने किया, फिर बाद में धीरे धीरे मुद्दे बदलते चले जाते हैं ये, और लोगों का जो डिस्कशन ऑफ पॉइंट है वो डाइवर्ट करके दूसरी तरफ ले जाते हैं। आज मैं जो फील कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि बहुत अंडरग्राउंड बहुत ज्यादा आक्रोश है, विशेषकर युवाओं में तो बहुत ज्यादा आक्रोश है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो उनके रोजगार छीने गए, उनके रोजगार चले गए, ये सभी अर्थशास्त्री टीवी में या अखबारों में लिखते हैं, उसको देखने के बाद पता चलता होगा कि देश की वास्तविक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और आज मैं शुरू से इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी के सामने फ्लैग करता रहा हूं। आज देश में अर्थव्यवस्था की जो हालत है, ये बात तो राज्य सरकार की तो बुरी हालत है ही। जब से जीएसटी इम्पोज हुआ है उस समय से समझिए कि राज्य सरकारों की रीढ़ की हड्डी निकाल ली गई है। सारे डिसीजन अब केंद्र सरकार करती है, जो उनको देना है देंगे, जो नहीं देना है नहीं देंगे। अपने स्टेटों को, अपने जो उनके एसोसिएट जो स्टेट्स हैं, उनको पॉजिटिव वे में देखते हैं। जो हम अपोजिशन में हैं वो कहीं ना कहीं इसमें पार्शियलिटी तो बिल्कुल क्लियर दिखता है। इसलिए मैंने कहा है कि ये जीएसटी जिस तरीके से केंद्र सरकार आज सारा बर्डन अपने ऊपर ले रखी है, क्यों नहीं राज्य सरकार को भी कुछ बर्डन मिले रिसोर्स जनरेट करने के लिए। आज जिस तरीके से रिसोर्स जनरेट करने के लिए जितने भी बेनिफिट कंपनीज हैं, उन सभी बेनिफिट कंपनी को ये देने पे लगे हुए हैं। और अभी सारी चीजों को ये कंपनसेट करने के लिए जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल में दाम बढ़ रहा है, इससे महंगाई तो घटेगी नहीं, महंगाई तो बढ़नी तय है। और ये कब तक कंपनसेट करके गरीबों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, आम जनों के ऊपर ये बोझ डालेंगे, ये समझ से परे है। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत इतनी बुरी तरीके से गिरी हुई है, तो आज हम देश के लोगों को इतने महंगे पेट्रोल डीजल क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब स्पष्ट है, ये कहीं ना कहीं इन लोगों का एक अपना स्ट्रेटेजिकली मूव है, जिससे ये एक रिसोर्स जनरेट राज्य के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, बल्कि अपने कुछ जो इनके कथाकथित लोग हैं उनके बैलेंस शीट को सुधारने में लगे हुए हैं। जो मुझे जानकारी है, पता नहीं सही है कि गलत है, जो नमामि गंगे का जो सफाई अभियान चला, 6-7 हजार करोड़ का जो डिसिल्टिंग हुआ, उसमें तो अदानी ग्रुप्स ने ही किया। आज वो तो कोई पता भी नहीं कर पाएगा कि वो पैसा गया कहाँ।
अब उसकी कोई जांच भी नहीं हो सकती है। इस तरीके से आज जो भी देश के अंदर लोग अगर थोड़ी बहुत कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं वो तो मनरेगा में कर रहे हैं। हमारे राज्य में तो मनरेगा को हमने बहुत जबरदस्त एक्सप्लोर कर रखा है, लेकिन उसके अंदर भी जो कुछ जो फॉर्मूलाज हैं उसमें थोड़ी सी लिबर्टी होने से और आसानी से हम लोग और तेजी से लोगों को जोड़ सकते थे। लेकिन जो पेमेंट वेमेंट का शेड्यूल है, जॉब जो उसमें सेलेक्ट करने का इशू है, वो सब राज्य सरकारों को कम से कम फ्री हैंड देना चाहिए कि आप लोग इस तरीके से काम कीजिए, कुछ एक बना करके और हम लोग उस तरीके से सेलेक्ट कर पाए। और इस तरीके से तो कई चीजें हैं जो बोलने के लिए है भारत, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद इस बात को कहा है कि हमारी कमिटमेंट है जीएसटी लगने के बाद हम आपको सर्टेन पीरियड तक कंपनसेशन देने की। और अभी मुझे लगता है अब चूंकि ये कोविड कोरोना का जो संक्रमण आया, इससे तो हम लोग को लगता है जो कंपनसेशन पीरियड था, ये पीरियड को भी बढ़ाना चाहिए, कंपनसेशन भी बढ़ना चाहिए और पीरियड्स को भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे ही रिसोर्स नहीं है। अभी तो बहुत मुश्किल से हमारे जितने भी कोल ब्लॉक्स हैं, आयरन ब्लॉक्स हैं, सबको बेचने पर ये लगे हुए थे, ऑप्शन करने पे लगे हुए थे। ये तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इन चीजों को मैंने रोका है। और उस पर मैं हम लोग होमवर्क भी कर रहे हैं कि हम अपने रिसोर्स को अपने राज्य के बेनिफिट के लिए कितना यूज कर पाए, रिसोर्स जनरेट कर पाए, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हर एक रुपया के लिए हम मोहताज ना हो। ये हमारा वर्क प्लान में है। और मैडम यहाँ एक और इशू है अभी एग्जाम का, जो नीट का है और जेई का एग्जाम का विषय, जो इन लोगों ने इसको दे रखा है, नेशनल एग्जाम क्या है, एनटीए को जो इन लोगों ने सपुर्द किया है एग्जाम देने के लिए, ये बात है सही है, एग्जाम होना चाहिए, इसके पक्ष में मैं हूं। लेकिन मुझे लगता है इट इज टू हरी। अभी बहुत सारी चीजें जो अभी हम लोग मुसीबत में फंसे हैं, अभी मुझे लगता है इसके लिए तो बहुत कुछ हमारे राज्य में तो स्थिति ये है कि हमारे राज्य में यूपी से भी बच्चे यहाँ एग्जाम देने आते हैं, बिहार से भी आते हैं, आस पड़ोस के राज्य के भी लोग यहाँ पर सेंटर डालते हैं। और मुझे जहां तक जो जानकारी मिली है, हमारे राज्य में तो मात्र 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स को ही इन लोगों ने सेंटर बनाया है। मतलब हमारे यहाँ जो स्थिति होगी, डेफिनेटली सारे बसेस खोलने पड़ेंगे, सारे होटल्स खोलने पड़ेंगे, सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑन करना पड़ेगा। और जो अभी कोरोना तो मेरे दरवाजे तक आ गया है, अब उसके बाद जो बच्चे आएंगे, बच्चे अकेले नहीं आते इस एग्जाम में, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ मूव करते हैं। और खासकर जो गर्ल्स होती हैं और पेरेंट्स के साथ आती हैं, मतलब को एक नहीं डबल ट्रिपल करके वो लोग आएंगे, मतलब पॉपुलेशन बहुत बड़ा होगा, जिससे संक्रमण उस समय और ज्यादा होने की संभावनाएं भी होंगी। मुझे लगता है इसमें डिले करने के लिए और थोड़ी सरकार को कुछ फैसिलिटेट करे केंद्र सरकार, ताकि हम लोग बेहतर तरीके से इस एग्जाम को करा पाए। नहीं तो फिर जो जिस तरीके से इन लोगों ने हर चीज से पल्ला झाड़ा है, इस केस में भी ये पल्ला झाड़ेंगे और सारे राज्य सरकारों के मत्थे डालेंगे कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। राज्य सरकार के पास ना वेंटिलेटर अभी हमारे पास उपलब्ध है, ना बेड उतना सफिशिएंट लोगों के लिए उपलब्ध है, ना हमारे पास वैसे रेस्क्यू सिस्टम हमारे पास इमीडिएट हम जनरेट कर पाए। तो है, समस्या तो है मैम, लेकिन इसके लिए हम लोगों को लगता है कि जॉइंटली कुछ प्रोग्राम बनाना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ। थोड़ा विपक्ष की आवाज थोड़ी बहुत कमजोर हमको महसूस हो रही है, और ये लोग तो जिस तरीके से आए दिन कभी सरकार को परेशान करो, कभी उस सरकार को परेशान करो, कभी इस विधायक को परेशान करो, कभी उस मिनिस्टर को परेशान करो, इसी में फंसा करके हम लोगों को माइंड डाइवर्ट करते हैं और हम लोग को इनके मेन मुद्दे से हम भटक जाते हैं। और इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा उनके जो स्ट्रेटजिकली पॉलिटिकल डाइवर्ट है, उस पर भी एक कड़ा नजर रखते हुए हम लोगों को उनको हिट करने की आवश्यकता है। मुझे नहीं लगा, क्योंकि इन लोगों ने गलतियां इतनी कर रखी हैं मैम, कि अगर हम लोग सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पर बातों को रखें तो मुझे लगता नहीं है कि हम लोग इनको ये करें। अब जैसे इन लोग सब आत्मनिर्भर भारत के नाम पर जितने भी जो प्रॉफिट कंपनीज हैं, सबका प्राइवेटाइजेशन करने पे लगे हैं, खासकर रेलवे पर।
रेलवे तो हुआ, रेलवे करने की वजह से कितने लोग अनएम्प्लॉय होने की स्थिति पर आए, हो गए, और कितने लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बेरोजगार हुए, वो तो आप सब लोगों को मालूम है। अभी भेल, गेल, एनटीपीसी, सेल, इन सब को बेचने की इनकी तैयारी चल रही है। कैसे चलेगा? आखिर हम लोग किस और देश को ले जाना चाहते हैं? और वैसे भी अर्थव्यवस्था पे खड़ा होने के नाम पर तो कहीं मुझे दूर दूर तक तो दिखाई नहीं दे रहा है। इतने सरकार पैसे रिजर्व बैंक से निकालती है, आम लोगों को तो मिल नहीं रही, ना फैक्ट्री चल रही है, ना छोटे चल रहे हैं, ना मिडिल क्लास इंडस्ट्रीज चल रही हैं, लेकिन सेंसेक्स में इन्फ्लुएंस जरूर दिखता है। और ये कौन सा इकोनॉमिक है, ये मुझे समझ में आता है। कोई इंडस्ट्री चल नहीं रहा, रोजगार हो नहीं रहा, आखिर सेंसेक्स बढ़ कैसे रहा है? ये कहाँ का फॉर्मूला है? ये कौन अर्थशास्त्री बताता है ये? और जितने भी आज देश की स्थिति को बताने वाली संस्थाएं हैं, चाहे वो क्राइम रिपोर्ट हो, चाहे डेवलपमेंट ये हो, वो सारी संस्थाएं आज बंद हो गई हैं। कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं हो रही है। किसी भी देश की स्थिति के बारे में पता ही नहीं चलता है कि कैसे हम लोग चीजों को आगे दिशा दे पाएंगे लोगों को। इसलिए थोड़ा सा हम लोग, मैडम आपने अच्छा पहल किया है, और हम लोग मजबूर भी हैं कि हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब हम लोग को लगता है कि मिलने की भी, और या तो इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म बना करके हम लोग रेगुलर एक सीटिंग करें, ताकि हम लोग को इनके जो षड्यंत्र हैं इसको हम लोग मुंह तोड़ जवाब दे पाए मैडम। इसलिए, और इन्वायरमेंट ये का भी एक इशू से इन लोगों ने अभी जो नया ये किया है, मैं थोड़ा सा इसको मैं आपको फ्लैग करना चाहता हूं। इन लोगों ने एक जो नया अमेंडमेंट EIA का जो इन लोगों ने किया है, जो पब्लिक डोमेन पे इन लोगों ने रखा भी था, लगभग 20 लाख लोगों ने सजेशंस दिए हैं। इसमें जो मेजर इन लोगों ने चेंजेस किया है, पोस्ट फैक्टो एनवायरनमेंट क्लियरेंस का, मैडम ये तो डिजास्टर होगा राज्यों के लिए। आर्बिट्रेरी एक्सपेंशन जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं इनके जो हैं, और इंस्पेक्शन ऑफ पब्लिक, जो पब्लिक हियरिंग को इन लोगों ने खत्म कर दिया है। ये पूरी तरीके से मैडम हमारे लिए तो हमारे जैसे माइनिंग स्टेट्स के लिए तो बहुत बुरा है, और इनकी तो हमारी गिद्ध नजर पड़ी हुई है हमारे स्टेट में। मैं तो अपोज कर रहा हूँ, लेट अस सी, देखते हैं कब तक हम कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग कभी कभी डराने धमकाने का भी काम करते हैं। खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें इन सब चीजों पर भी जो है बात रखनी चाहिए। तो इस तरीके के है मैडम। हम तो, और बातें बहुत है, लेकिन आप लोग सीनियर लोग हैं, आप लोग ज्यादा एसेस करते हैं, आप लोग देख रहे हैं, और बिल्कुल हम आप लोगों के साथ हैं। आप लोग बेहतर प्लानिंग कीजिए, और प्लानिंग होनी चाहिए और जोरदार होना चाहिए, मेरा ये मानना है। धन्यवाद मैम। ममता जी, Yes, madam. Yes. I'm told that Uddhav Thackeray ji has to go Yes. fairly soon, so perhaps he should speak and then the others. आप बोल दीजिए उद्धव जी। दीदी इजाजत है? आप बहुत बढ़िया फाइट कर रहे हैं। मैं तो करूंगा, लड़ने वाले बाप का लड़ने वाला बेटा हूं मैं। उद्धव भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार हेमंत जी। सोनिया जी, पहले तो मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ, फिर से आपने पार्टी की कमान संभाली है, और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ आपको। आज का जो विषय है, मैं नहीं मानता कि जितने सारे हमारे साथी मुख्यमंत्री जी हैं, किसी का भी मत इससे अलग होगा। सब सारे एक ही स्थिति से गुजर रहे हैं, और लड़ाई तो चल रही है। हेमंत जी, पहले जैसे आपने जो बात कही, हमें तय करना चाहिए, अभी एक बात तय करना चाहिए, डरना है कि लड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। पहला ये तय करो, नहीं तो ये हमारी चर्चा होती रहेगी, मिलते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, जो भी कुछ, जहाँ आपके यहाँ आएंगे तो आप जो खिलाएंगे हम खाएंगे, हमारे यहाँ आएंगे तो सही बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कोई मतलब नहीं है। लड़ना है तो लड़ना है, फिर जो होगा होगा। और हमारा तो यही है, सत्यमेव जयते। ऐसे कभी ये नहीं कि आज तक कभी सत्तामेव जयते नहीं है, सत्यमेव जयते है। तो लड़ना है तो लड़ना है। आम आदमी क्या होता है, आम आदमी की ताकत सबसे बड़ी होती है, उसका आवाज सबसे ऊंचा होता है, और वो अगर कोई दबाने की कोशिश करे तो उसकी आवाज उठानी चाहिए, और वो हमारा कर्तव्य बनता है। खैर,
दो तीन मुद्दे जो मेरे पास आए हैं। एक तो जीएसटी की बात, दीदी आपने जो कही वही सारी लोगों की स्थिति है। लगातार ये जो पूंजी है बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन एक एक महीना जैसे आगे आगे निकल जा रहे हैं। केंद्र से आने की जो जितने पैसे हैं उसमें बढ़त हो रही है, लेकिन मिल नहीं रहा है। मैंने आज जानकारी ली, बीच में हम क्या करें, खत लिखते रहते, पत्र लिखो, और जब भी हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है आपने देखा होगा, मैं कोशिश करता हूं कि हमारे जितने बाकी सारे दुख है वो वहां मैं नहीं कहता हूं। जो भी कोविड के बारे में होता है मैं कोविड के बारे में कहता हूं, अन्यथा बीच में हम खत तो लिखते रहते हैं। कभी जवाब आता है, कभी आता नहीं। जवाब आता है तो भी पैसे कभी आते हैं, अप्रैल से तो शायद आए भी नहीं है। तो ये स्थिति आज के दिन हमारे सबकी है। लड़ तो सभी रहे हैं, कोविड के साथ लड़ रहे हैं, अपनी ही सरकार है, ऐसे नहीं हम विपक्ष में। विपक्ष का मतलब क्या है? विपक्ष का मतलब ये नहीं कि किसी पार्टी का हम बुरा चाहते हैं, नहीं, हम भी आम आदमी की उसके हम रिप्रेजेंटेटिव है, हम भी कुछ हमारा अधिकार है। आज कैसे होता है कि राजीव जी की बात करें तो उन्होंने पंचायत राज, वो एक बात कही थी। पंचायत राज का मतलब क्या है कि जो भी सत्ता होती है उसको छोटे इसमें केंद्र में उनका अधिकार दे दो। आज क्या हो रहा है? आज सबके जो अधिकार है एक हाथ में चले जा रहे। फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है, हमारा राज्य सरकार का मतलब क्या है? क्या कभी आगे जाकर ऐसे हो जाएगा कि राज्य सरकार की जरूरत ही नहीं रहेगी, एक ही व्यक्ति देश चलाएगा और हम खाली हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे? ये नहीं होगा। फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो उसको डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने उसको ध्यान में रखकर हमारी घटना बनाई है, और उस घटना में जो भी अधिकार सबको दिए हैं उसका अगर हम आदर नहीं करेंगे तो फिर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है कहाँ? तो डेमोक्रेसी की बात अगर हम करें तो डेमोक्रेसी में सबसे ऊंचाई पर है हमारी घटना, और उसमें फेडरल स्ट्रक्चर की जो बात की गई है उसको तो उसकी रक्षा करना, सरकार को चलाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन घटना का रक्षण करना वो भी काम है। तो इसीलिए जीएसटी के बारे में भी मुझे ऐसा लगता है कि क्या उसके ऊपर भी फेर विचार होने की आवश्यकता है कि पहला जो एक स्ट्रक्चर था, हो सकती है कुछ बात हो सकती है कि अगर कुछ बदलाव लाए, अच्छा भी हो सकता है, बदलाव लाए तो गलत भी हो सकता है। अगर गलती हो सुधारी भी जानी चाहिए, सुधारने की आवश्यकता हो तो उसको स्वीकार कर आगे जाना चाहिए। तो एक बात तो मैं मानता हूं कि केंद्र से पैसा कितना आना बाकी है वो तो है, लेकिन क्या ये जो स्ट्रक्चर पहले था वो और आज का जो है इसके बीच में कुछ रास्ता निकलना चाहिए कि पहले था वो सही था? इसके ऊपर भी हमें सोचने की आवश्यकता है। एग्जाम की अगर बात करें तो मैंने तो शायद मई एंड या जून में हमने डिसीजन लिया, जो फाइनल ईयर है जितने सेमिस्टर हुए हैं उसको एग्रीगेट कर मार्क्स दिए जाए, और हमने कभी ये नहीं कहा कि हम एग्जाम नहीं लेंगे। लेकिन जून महीने की अगर हम बात कर रहे थे, मैं कर रहा हूं, तो जून की स्थिति और आज की स्थिति, आज तो ये खतरा बड़ा है। और हमारे शहर में ठीक है, हमारे मुंबई में तो हमने कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, काफी कंट्रोल में आ भी गया है, लेकिन और कुछ जगह वो फैल रहा है, कोरोना थोड़ा फैल रहा है। तो जून से आज की बात करें तो आज ज्यादा फैला हुआ है। तो जून में अगर हम परीक्षा लेने की स्थिति में नहीं थे तो आज ये जब संकट बढ़ गया तो हम कैसे परीक्षा ले सकते हैं, एग्जाम कैसे ले सकते हैं? और इसीलिए हमने स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जितने सेमिस्टर हुए उसको एग्रीगेट कर मार्क्स दिए जाए। बच्चों का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए और रुकावट भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम उनको पास कर देंगे, और बाद में जब भी संभव हो हम एग्जाम जरूर लेंगे। और अगर किसी बच्चे की ऐसी धारणा होगी कि अरे नहीं एग्जाम होता तो मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता था, तो वो उसकी मर्जी, वो उस एग्जाम वो दे सकता है। फिर एग्रीगेट किए हुए मार्क्स और एग्जाम में मिले हुए मार्क्स चुनना उसका काम है। तो मैंने पहले कभी ये नहीं कहा कि हम एग्जाम नहीं लेंगे, लेकिन आज के दिन ये स्थिति नहीं है। और जैसे कहीं बाहर के देशों की ओर हम देखें, मैंने बीच में खबर पढ़ी थी यूएस में उन्होंने स्कूल खोल दी और ऑलमोस्ट 97,000 बच्चे, 1 लाख के आसपास वो संक्रमित हो गए। क्या करेंगे ऐसे अगर स्थिति हमारे यहाँ आ गई तो? हमने उद्योग तो मई महीने में ही शुरू कर दिए। आज भी हमारे यहाँ जो इलाका है, जो सबसे डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, मुंबई से लेकर पुणे तक, वहां हमने लॉकडाउन है, जरूर है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते हम इसको खोलते जा रहे हैं। मिशन बिगिन अगेन।
तो आहिस्ते आहिस्ते खुलने के वक्त शायद कुछ लोगों को ऐसे लगता होगा कि हम काफी स्लो जा रहे हैं। स्लो ठीक है, वो टॉर्टोइज और वो खरगोश, उसकी तो कहानी सबको पता है। जल्दबाजी कर कर कुछ फायदा नहीं होता है। आहिस्ते कदम जाए लेकिन ठीक से डालें, तो जो कदम हम आगे बढ़ाएंगे उसको वापस लेने की आपत्ति हम पर नहीं आनी चाहिए। ये सोच समझकर हम आगे जा रहे हैं। तो सारी चीजें हम खोलते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे हम खोलते जा रहे हैं। स्कूल, मैंने स्कूल के बारे में भी यही कहा कि स्कूल शुरू कब होंगे? स्कूल शुरू नहीं करेंगे लेकिन एजुकेशन शुरू करेंगे, वो चाहे ऑनलाइन हो या कुछ भी हो, ई लर्निंग हो। तो इस विषय पर भी हम काम कर रहे हैं। जो बात मुझे दिखाई दे रही है एनवायरमेंट की, एक जो बात रहेगी वो भी मैं बता देता हूँ। हमने तो एक लेटर दे दिया है जावड़ेकर जी को। वैसे तो आदित्य ने 2-4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी को लेटर दिया है एजुकेशन के बारे में, और उसमें आदित्य ने लिखा है कि ये जो एजुकेशन एकेडमिक ईयर है, जैसे फाइनेंशियल ईयर वो आगे बढ़ा है, तो एकेडमिक ईयर भी क्या हम जनवरी से शुरू कर सकते हैं? क्योंकि आज तक देश की अगर बात करें तो हर राज्य की स्थिति अलग अलग है। कुछ राज्य नसीब वाले हैं और वो नसीब वाले ही रहे कि जहां उनके यहाँ इसका ये संक्रमण कम हुआ होगा, अच्छी बात है। लेकिन आज के दिन हमारे यहाँ तो वैसे नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ही केयरफुली हमें आगे जाने की आवश्यकता है, और इसीलिए आदित्य ने कहा कि एकेडमिक ईयर हम आगे करें क्या, जनवरी से शुरू करें क्या। तो वैसे ही एनवायरमेंट की बात करें, हम क्या करते हैं? विकास चाहिए, हाँ चाहिए ना विकास। हम तो सरकार इसलिए सरकार में आए कि विकास के लिए आए हैं। कुछ लॉकडाउन, परमानेंट लॉकडाउन करने के लिए हम नहीं आए हैं, हम तो विकास के लिए आए हैं। और आप सभी को याद होगा, लगभग हमारा सेशन तो उसी दरमियान चलता रहता है। मार्च महीने में हमारा महाराष्ट्र का सेशन चल रहा था, बजट हमने पेश किया, और 2-4 दिन में हमें सेशन समाप्त करना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना शुरू हो गया। तब से घर में बैठे, वर्क फ्रॉम होम, और ऐसी बात मुलाकातें होती रही। तो विकास के लिए हम तो सरकार में आए हैं, लेकिन विकास का मतलब ये नहीं कि जहां चाहे हम हमारी मर्जी कुछ भी करें, जंगल है तोड़ दो और वहां से कुछ भी करो, नहीं। और इसीलिए खास कर हमारे विदर्भ से एक जाने वाला रेलवे का एक रूट है अकोला खांडवा, वो मध्य प्रदेश से जाता है। वो जाता है बीच हमारे जंगल से, मेलघाट, जो टाइगर का घना जंगल है। तो हमने उनको ये कहा है कि अल्टरनेट कुछ करें, कि हम बीच जंगल से ये रास्ता जा रहे हैं तो हम घुमा कर लेके जाएं, तो ज्यादा बस्ती, ज्यादा लोगों को इस्तेमाल होगा। तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर करना चाहिए। आसान उत्तर हम जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन आगे जाकर हमें आपत्ति आ सकती है। तो ये सारी बातें हमारी होती रहती है। लेकिन दीदी आपने जो बात कही कि हमें मिलते रहना चाहिए। जब भी कोई आपत्ति आती है तो हम भागम भाग करके इकट्ठा आते। क्यों आपत्ति की जरूरत है क्या हमें इकट्ठा आने के लिए? आपत्ति के बिना भी हमें मिलते रहना चाहिए। अगर हम हमेशा साथ रहेंगे तो आपत्ति की क्या हिम्मत है हमारे सामने आने की? हम हमेशा साथ रहेंगे तो आपत्ति भी डर कर रहेगी, अरे ये तो इससे इनके नजदीक जाने में खतरा है। आपत्ति को खतरा महसूस होना चाहिए, हमें नहीं। और ये जो बात हम जो कर रहे हैं, ये कॉमन मैन की बात है। जैसे जीएसटी की बात है, पैसा आएगा नहीं तो हम कैसे करेंगे? जैसे आपने कहा कि सारी बातें हम तो फ्री दे रहे हैं, ट्रीटमेंट फ्री दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। अभी इस सितंबर से लेकर वो केंद्र से जो पीपी वेंटिलेटर जो आने वाला था, आ रहा था, वो भी बंद होने जा रहा है। वो मुद्दा भी मैंने पिछले प्रधानमंत्री जी के सामने कॉन्फ्रेंस पे मैंने उठाया था। एक एक चीज वो बंद करते जा रहे हैं, और हमारे यहाँ हमें देने की आवश्यकता हो रही है, जरूरत पड़ रही है। तो ये सारी बातें हमें सोच समझकर एक प्रोग्राम बनाना चाहिए, और सब मिलकर हम जाएंगे, केंद्र के सामने जाएंगे। ठीक है, हमारा अधिकार है, हम भीख नहीं मांग रहे। जो बात आपने कही वो सच है, भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है, हमारी जनता का अधिकार है। और हमारी जनता, ठीक है, हमें भी वोट दिया है, और साथ साथ प्रधानमंत्री जी को भी वोट दिया है। मतलब ये जनता कोई हमें वोट देने वाली जनता बाहर से आई है और वहां उनको वोट देने वाली जनता यहाँ की है, ऐसी बात नहीं। एक ही जनता है, जनता तो वही है। लेकिन हम करे तो पाप और वो करे तो पुण्य, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोच समझ कर एक प्रोग्राम होना चाहिए, मिलते तो रहना चाहिए। जब भी मौका मिले तो बिना मास्क, आज तो मैं बिना मास्क आपके सामने बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेरे घर पे बैठा हूँ। हेमंत जी, आप भी, और सारी बातें, क्योंकि हम अपने अपने घर में हैं। लेकिन उस दिन की हम कामना करते, प्रार्थना करते कि जल्द से जल्द ये कोरोना का संकट टल जाए और हम
खुलेआम एक दूसरे के साथ ऐसे आमने सामने बैठकर बात कर सके। मुझे तो इतना ही कहना था, जो भी हमें करना है सब साथ मिलकर करेंगे। जनता की आवाज है, वो कोई दबा सकता नहीं, और दबाने की अगर कोई कोशिश करे तो हमारा कर्तव्य बनता है कि वो आवाज और ऊंचा करे। तो सोनिया जी, आपको मैं अभी धन्यवाद दे रहा हूँ, आपने मुझे जल्दी बात करने के लिए इजाजत दी, और मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा मेरी कैबिनेट अभी शुरू हो जाएगी तो इसलिए मैं इजाजत लेना चाहता हूँ। इजाजत रहेगी आप सबकी तो कैबिनेट के लिए मैं जाऊंगा, और सबको मेरी शुभकामनाएं। साथ है और साथ में रहेंगे, साथ में लड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सुनिए जी, ये बात तो ठीक कहा है कि हम लोग ने प्रोग्राम हमको लेना जरूरी है कि किसी को भी स्टेट में कोई प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को, एक क्या करते हैं पूरा चीज को डाइवर्ट करके सबको अलग अलग करके रख देते हैं। बट वी मस्ट रेज आवर वन वॉइस, नहीं तो देश में क्या होगा, और कोई पॉलिटिकल पार्टी रहेगा ही नहीं। No, I agree. I agree that we have to work together and fight together. अभी तो आपका पार्टी क्यों? No, should we, Amarinder ji? Good afternoon. Yes, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Fellow Chief Ministers, good afternoon. Good afternoon. Ma'am, I think shuru kare, as the root of all evil is this COVID. And the COVID situation is bad, it's getting worse. जैसे मैंने आपको बताया था that we are likely to reach a peak by mid to end September. And आज हमारे 44,000 cases हैं जो हो चुके हैं, जिसमें से 29,000 have been cured and sent back. But this 44,000 is likely to go up to 110,000 by the 18th, according to our doctors team that is handling this situation. I'm worried more about this case of deaths. We have had 1,178 deaths, 49 yesterday. And the possibility is that the predictions are that up to 3,000 we will go by this mid-September. Now, in a scenario like that, when we are going to peak, what my colleagues from Bihar and Jharkhand and Maharashtra and Bengal have said, we are in the same scenario. We are today in a situation where the finances of our states are completely down. I can tell you that I don't know what the today statement has come from the finance minister that the GST is going to be on schedule, but my finance minister has gone from Punjab today to meet her, and let us see what happens there. But what information we have received just now is that they have taken the opinion of the Attorney General, who says that according to sources, the Attorney General has opined that there is no obligation on the central government to pay the GST compensation shortfall to the states. And GST Council has to decide on ways to make good the shortfall in compensation fund. Now, if we are not going to get compensation and we are not going to get our GST, and as of now, the situation is this, that my own state is down. My own revenues are down in GST by 38%, VAT minus 31%, state excise just 1% positive, taxes on vehicles minus 63%, this is compared to last year, and stamps and registration minus 41%, electricity duty 25%. This year, financial year, will be ending with something like 25,000 crore deficit. I don't have money. I don't have money to run. For Corona, I've got, we have already spent nearly 500 crores. Government of India has given us 101 crores, and they say that they're going to give us 30 more. And this thing is it's growing from our cities. Now it's going into the villages, and we are going to be into a serious financial crisis. How do we handle this, man? This is one thing which I have to say. And I agree with what Mamta ji says. And I think all of us should collectively go and see the Prime Minister and go and tell him what we think of what the situation is like. And after all, he's the Prime Minister of the state. He has to give us. We've given all the powers of taxation to him through the GST. If we are all our taxes which we used to collect
are now to be collected by him, and now they're saying that they may not be able to pay it. They don't have any commitment to give it to us. Then how do our states run? So we've got this sort of scenario which is developing, which is compensation. They have paid me GST up to March. Now 2 quarters they haven't paid. So we've received 6,900 up to March, and in these last 2 quarters we are due 7,000 crores. That's not paid, and I don't know when they're going to pay it according to their commitments, which they're making. We have asked that the revenue deficit grant be allowed on the 15th Finance Commission should be allowed for the year 2021. They're giving it, but for the next 4 years as well, that they're not agreeing to. The Government of India should provide liberal finance assistance for the decrease in revenue collection for COVID-19, that they're not agreeing to. Punjab, as I said, has received about 500 crores, ma'am, and 102 crores from them. They say 30 crores more, and we have spent nearly 500 crores. And that this figure is going to go higher and higher. Ma'am, when we started off COVID in March, we had 200 tests a day. Now we are 25,000 tests a day. And by the end of this month, we'll be going to 30,000 tests a day. Now, every time, of course, that takes the figures up. But what does it mean? It means that Corona is there, and it's only showing up in the tests. And once we go to 30, it's going to go further up. But now things are bad. I've got in the primary and secondary sectors, we are under control. In the tertiary sectors, we are not under control. We have to now somehow put a block on all this that is happening and this growth that is taking place. So what I have had to do is I have to clamp down in certain areas to keep this under control. I even have today, there are people which are 499 are today under oxygen handling in the being administered oxygen in the hospitals, and 55 are on ventilators. 10 were yesterday added to this, and 85 yesterday were added to oxygen. So you see the figures, how they're growing. Every day I see these figures, and it sort of are figures that are unacceptable to me, at least. And I want to do what we can to do this, but it has to be a combined effort and on the part of the Government of India to give us this resource, because resources states can't manage. Look at Maharashtra, what a big state it is. Look at Bengal, what a big state it is. And the chief ministers are giving their views. And we are a tiny little state. We are 2% of the country. We're a small little state. And we have all these problems. And these problems are continuing because, ma'am, I'm getting people coming in from overseas. I'm getting people coming in from other states which are infected. I'm getting nearly 8,000 vehicles which are moving into Punjab every day. And my figures are going up and up and up because of this. Spread is taking place. And I don't think the Government of India seems to be at least interested in the least in what we are doing or what we are. I've written to the Prime Minister, I've written to the Home Minister, I've written to everyone who matters, and that is it. We have never had a reply on this issue. That's the financial situation. Our finance minister is constantly in touch with Mrs. Sitharaman, and there also we are not getting any commitments. So these are the things we have to do, ma'am. This is something that I think if we combine, do it. And as Mamta ji has suggested, another thing on education. Now, education is a problem for us, ma'am. We have in schools, what we have done is that anyone who has passed the pre-exam, for instance, we are promoting them. We are not getting them there. The reason is very simple. If in September I'm going to touch a peak, how can I get my schools to open? How can colleges function? We have written to the Prime Minister 3 times on this issue of University Grants Commission being told to hold the other college exams, to delay them or to let the students be passed. We are told no. Now, I think if, as Mamta ji has suggested, all of us states take this up combined with the Supreme Court and fight it out there. And let's try and see that the Supreme Court, which has so far given a negative opinion, may on a review petition, may listen to us. Because we are all concerned. We are not, I mean, we would like to have the exams. We would like the children to pass. But how can I bring the children to school when I'm one side running a crisis in the state because of this COVID? So this is something that we cannot do. We have written to the UGC. My vice chancellors have written to the UGC. The Guru Nanak Dev University vice chancellor has been in the UGC.
He knows all the people there. He's been to talk to them, but they don't agree. And then of course, Supreme Court has given this. But I'm sure if we all go combined to that, this can help. We've done that for the schools, not colleges. Then the other ones that they mentioned about these professional examinations, that I think these ones of the NEET and IT and the JEE, common law, aptitude test, etc. These can be done online. Nobody's on the professionalism. Nobody's saying that it shouldn't be online. They can be done online, and I think Government of India should agree. It's been happening in the past. It's happening now all over the world. Why can't it happen here? That's not what I'm talking about. I'm talking about our colleges and schools, our colleges exams for to BAs and MAs and whatever they are. That's at the university level. So this is basically what we are, ma'am. And thirdly, for me, which is a very important issue, I have 3,17,000 SC students in the state, ma'am. I'm the largest population of SC population in any state. We are 32%. No state has got 32% SCs other than us. And we used to, the Government of India used to give us a certain grant for them post-metric scholarships. Now they've told us, and post-metric scholarships, what it cost us is about 720 crores a year, which they used to give us. Now they say that you spend up to 800 crores and anything more than that we'll give you. When we don't have anything more than that, and we only want that 720 crores to come to us. If you're not going to give me for my SC students, then how do my post students go to school and study? Now, this is something which I find is a very strange thing, that you are not even willing to contribute to the SC students of my state. I don't have money. I don't have money sometimes to even think how I'm, I have to think sometimes how I'm going to pay my salaries. How am I going to pay the various compensations or the various commitments that the state has made? And then on top of that, you're trying to thrust this also on us. I would like all my children to be educated, and that 32% is 1/3 of Punjab. How can I just leave them out? And I don't think the Government of India has any business to cut it out for the poor families and for the SC families of the state. So this is another issue which I wanted to mention. And finally, ma'am, there's this new education policy they brought out. Now, they have not consulted us. I don't think they've consulted any of my colleagues also. They have just gone and thrust education policy on us without us knowing what they're planning, without us knowing what it's going to cost us, without us knowing whether it suits us or not. What suits us may not suit Assam, may not suit Kerala. We have a different, every state has its own system of these sort of education policies. So I would like that we are going to look through this. We are going to be putting up a committee to look into it. When you trusted in us, what is the impact it's going to have on our education? What's the impact it's going to have on our finances? And then only we can answer this. But this is something another, I think it'll affect the other states as well to consider this issue. And lastly, ma'am, just to give you some information, which is in fact, the paper has just arrived. Day after tomorrow, our Vidhan Sabha is starting. And we have said that everyone should, including the Chief Minister downwards, every MLA must have his COVID test done. A few were done today, and 23 of my MLAs are positive as of today. Now, these tests are going to continue tomorrow and day after tomorrow. Now, you can imagine, ma'am, if this is the state of my legislators and ministers, what is the situation in our state? So therefore, it is my request to you that I think we should collectively meet and go and see the Prime Minister and request our colleagues from other states, not from our party, like Thakre ji and Hemant ji and also Mamta ji, to come along with us and let us force this issue and inform him that we are not asking for anything out of the moon or out of the blue. We are asking for something which we think every state must get, their states too and our states too. And so that we can at least move forward and try and get over this crisis which is has engulfed us all. Thank you, ma'am. Thank you. अमरिंदर जी, just 1 minute, मैडम सोनिया जी. अमरिंदर जी, अगर पॉलिटिक्स एग्जाम के लिए सुप्रीम कोर्ट में अगर आप लोग स्टेट को मिलके रिव्यू कर सकता है, तो क्या आप इसको मानेंगे? हाँ, मैं तो आपके साथ चलूंगा. We'll go to the Supreme Court.
में इसको तो रिव्यू पिटिशन तो हम कर सकते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहते हैं तो ऑल वी आर प्रेजेंट हियर, एटलीस्ट वी कैन। मैंने तो रिक्वेस्ट किया ममता जी that all of us, all 6-7 of us who are sitting here, we should unitedly go to दीदी सर, मुझे लगता है कि कोर्ट जाने से पहले एक बार पीएम के यहाँ चला जाए या प्रेसिडेंट के यहाँ चला जाए जॉइंटली, देन वी विल मूव टू सुप्रीम कोर्ट। मुझे लगता है ये स्टेप उठाना चाहिए। प्रॉब्लम यही है एक भाई that the election exams are to be held in September तो परसों से हुआ है। I mean, if we go to ask for time with the Prime Minister, कभी 2-3 हफ्ते ना मिले तो फिर कैसे करेंगे हम? Because September the exams are due. 1 सितंबर एग्जाम है यार। प्राइम मिनिस्टर को हम लोगों ने लेटर लिखा लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसी के लिए स्टूडेंट लोग भी अभी खतरे में है ना, वो लाइफ क्यों रिस्क लेंगे? अगर उसको एक साथ में जैसा सिस्टम किया है उसमें तो लाइफ रिस्क हो जाएगा। कितना एमएलए हमारा अभी कोविड में अटैक है, कितना मिनिस्टर कोविड में अटैक है, इवन देश का होम मिनिस्टर कैसा है मेरे को पता नहीं है। तो मैडम दीदी, आज के दिन में लगभग 70,000 पर डे पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो इसमें हम कैसे करेंगे? हम कैसे खतरा में डालेंगे? तो लेटर बहुत मैस हो जाएंगे मैम। एक बात ठीक है, कल आप अगर दिल्ली में जो प्रेजेंट है और जो नहीं है जाके एक प्राइम मिनिस्टर का साथ मीट कर सकता है सोनिया जी, अगर इसको एडिट करे तो। लेकिन उसका बाद नहीं सुने तो हमको तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है। विल बी वेटिंग। पंजाब चीफ मिनिस्टर यू टेक द लीड। हम लोग देखिए एक साथ में हम लोग अपील करेंगे। तो आप लोग टुडे इज 26 ना, 26, 27, 28, 29, 30 फर्स्ट को एग्जाम है ना। फर्स्ट को एग्जाम से जल्दी करना है। कल तो ये डे टू डे नहीं होगा। तभी ठीक है, you know, because September 1st तो आ गया ही हमारे पास। So why do we wait for that? Let us go to court. सुप्रीम कोर्ट चलो, हम सब चलते हैं। पंजाब यू टेक द लीड। आप कर लो, हम लोग सब एक साथ नहीं करेंगे, अलग अलग नहीं करके बेटर होगा। हेमंत जी, अगर उद्धव जी भी अभी नहीं है लेकिन सब पार्टी तो है, एक साथ ना 6-7 स्टेट भी हम करें ना, तो अदर स्टेट, नवीन जी भी कल हम सुना है उन्होंने कहा कि हम लोग इसको पोस्टपोन करने चाहते हैं। और भी बहुत स्टेट है जो हमारा साथ नहीं सकता है, नहीं रहने सकता है, लेकिन स्टूडेंट का इंटरेस्ट के बारे में सबको करना पड़ेगा। इसी के बारे में आज मीटिंग से तो इसका बारे में एक क्लियरली है। दूसरी बात यह है कि कोरोना थोड़ा कमती होने का बाद एक डेपुटेशन पीएम का साथ मिलना चाहिए, प्रेसिडेंट का पास भी जाना चाहिए। और दिल्ली में जो लोग रहते हैं, सोनिया जी आप लोग तो दिल्ली में यू आर सेटल देयर, तो उधर में भी एक डेलीगेशन हम पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव भेज देंगे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को पास, जो स्टेट का बारे में जो बोलना है इसको बारे में जल्दी से जल्दी करना है। हमारा बोलता है नहीं देगा, अरे नहीं देगा तो हमारा टाका रुपया लेके चला जाता है और बोलता है नहीं देगा तो स्टेट चलेगा कैसे? नहीं, सही बात। अभी मैडम जो एग्जाम का डेट इन लोगों ने डिक्लेयर किया है उसमें कोई एसओपी भी तो नहीं बताया है कि कैसे होगा नहीं होगा, उसका भी तो बहुत। हेमंत जी, वो कल एक लेटर दे दिया, कल एक लेटर देके बोला है कि देखो आपका सारा देश भर यही जगह सेंटर होगा, वो सेंटर में इतना 50 लाख इतना करीब स्टूडेंट एग्जाम में बैठेंगे। कैसे बैठेंगे? नो सोशल डिस्टेंसिंग, नो फिजिकल डिस्टेंसिंग। उसका लाइफ सिक्योरिटी है, उसका लाइफ का सिक्योरिटी बर्बाद हो जाएगा। अगर वो करियर के लिए जा रहा है तो उसको सिक्योरिटी भी मेरा हम लोगों को देखना कर्तव्य है। कैसे हम स्टूडेंट लोगों को जिंदगी खतरा में डाल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल मैडम, ये सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं है, बहुत कुछ खुल जाएगा, फिर तो सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। अशोक जी आदरणीय परम श्रद्धेय सोनिया जी, तमाम मेरे मुख्यमंत्री साथीगण, बघेल सर प्रणाम, गहलोत सर प्रणाम। प्रणाम। अच्छा लगा। कैसे हैं? ठीक है मैडम ने प्रयास किया एक साथ में और हम लोग सब आपस में बातचीत करने लायक बन सके। मैं इस मौके पर मैडम मेरे साथियों भी कहना चाहूंगा, सब लोग एक सी स्थिति गुजर रहे हैं और जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अगर डेमोक्रेसी मजबूत दिखती है तब तो ये सब बातें करने का, उस जगह लाभ मिलने की उम्मीद होती है।
भाई सरकार से क्या उम्मीद करें, क्योंकि जब से सरकार बनी है 14 में, तब से ही जो रवैया सरकार का है वो इस प्रकार का बन गया है कि कोई लोगों में घुटन महसूस हो रही है कि कहें तो किसको कहें और कहें तो कोई सुनेगा क्या। ऐसी स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। ऊपर से कोरोना आ गया। सबको मालूम है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति पहले इकोनॉमिक स्लो डाउन था। इकोनॉमिक स्लो डाउन तो यूपीए गवर्नमेंट में आया था, परंतु तत्काल कदम उठाए गए तो कम से कम इम्पैक्ट बहुत कम रहा देश के अंदर। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, आपने उस वक्त में देखा किस प्रकार से फैसले के बाद हुए थे। वो तो इत्यादि दर्द हो गए, चाहे वो आरटीआई था, चाहे आरटीई था, चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट था और चाहे नरेगा था। आज नरेगा और फूड सिक्योरिटी एक्ट ही बचाए हुए हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया है। परंतु दुख इस बात का है कि कोरोना ने जो स्थिति करी है राज्यों की, पूरी लड़ाई राज्य सरकार लड़ रही है और केंद्र सरकार से खाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। जो हमने सुझाव दिए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अंदर, उन सुझावों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। और तो जो 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया, वो भी खाली एक प्रकार से लोन ड्राइवन थे, लोन के आधार पर है, जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई ग्रांट नहीं है, सब्सिडी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि राज्यों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। जो हमने वादे किए थे जनता से, बजट पेश किया था, कमिटमेंट हमारे थे, सबको मालूम है कि इसके कारण से रेवेन्यू 40% मुश्किल से रह गई है राज्यों की। और बिना केंद्र के सहयोग से राज्य सरकारें जो कमिटमेंट पूरा कर नहीं सकती। हमें अपने बजट जो बनाया हुआ है उस पर कटौती करनी पड़ रही है और स्टेट मेजर हमारे उठा रहे हैं। लॉकडाउन लंबे समय तक चला, उसके कारण भी स्थिति बिगड़ गई। सब जगह दुकान हो, व्यापार हो, इंडस्ट्री हो, सब बंद हो गए। वक्त लगेगा कि श्रमिकों के अलग प्रॉब्लम्स हैं, रेवेन्यू रिकवर होने में वक्त लगेगा। तो तमाम मेरे पूर्व साथियों ने जो बातें बनाई है वो हकीकत में है कि आज जीएसटी जो वादा किया हुआ केंद्र सरकार का, आज हमारे स्टेट में करीब 6,990 करोड़ रुपए बकाया हो गए हैं और उसका कोई जवाब नहीं है। कोई हमने 25-30 लेटर लिखे होंगे प्रधानमंत्री जी को, जवाब आते नहीं है वहां से। अगर कोई मुख्यमंत्री पत्र लिखे जो जवाब ही नहीं आए तो हम फिर क्या उम्मीद कर सकते सरकार। जो वादे किए गए थे जीएसटी को लेके वो पूरे हो नहीं रहे हैं। हम तो मांग कर रहे थे 5 साल और बढ़ाया जाए। मांग किससे करें जब जो अभी जीएसटी मिलनी चाहिए हमें मंथली, वो भी नहीं मिल पा रही है। हमने मांग की थी कि बोरोइंग जो मिलती है, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, जीडीपी का हम क्या देते 3% की बजाय 5% मिले स्टेट जीडीपी का। एलो किया पर सरकार ही लगा नहीं, वो सरकार कभी पूरी नहीं हो सकती। हमने एक सिंपल मांग करी मॉनिटोरियम की कि राज्य सरकार में जो कर्जे हैं भारत सरकार की एजेंसियों के, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है या अन्य एजेंसी हैं, खाली 6 महीने का मॉनिटोरियम चाहिए, उसकी परवाह नहीं करी गई। आरबीआई देती है वेरियस लिमिट्स में एडवांस देती है, हमने कहा खाली ब्याज मुक्त कर दो कोरोना के अंदर, उसकी परवाह नहीं की गई। अभी स्थिति ऐसी बन गई राज्यों की कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आने लग गई। किस प्रकार हम तनख्वाह चुकाएंगे टाइमली, वो सवाल हमारे सामने खड़ा है। और तो जो सीएसएस की स्कीम होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसमें जो पहले फॉर्मूला था वो बदल दिया गया। जो पहले आराम से पैसा मिलता था तो हम भी अपना पैसा लगा करके खर्च करते थे, अब उन्होंने जो फॉर्मूला बदला है वो निर्वेश कर दिया है। उससे और ज्यादा मुसीबत पैदा हो गई कि राज्यों में सीएसएस के काम जो है वो हो नहीं पाएंगे। और तो और जो हिस्सा मिलता केंद्रीय करों में हमें, मृत्यु के कहते हुए कि उसमें इस 1 महीने में 800 करोड़ की कमी आ गई 1 महीने के अंदर। तो सोच सकते हैं अगले महीनों में क्या होगा। तो चारों ओर से हम लोग घिरे हुए हैं
और सरकार को तो परवाह इन बातों की है नहीं। सरकार को परवाह है सरकारें गिराएं कैसे। जैसे उन्होंने कर्नाटका में खेल खेला, मध्य प्रदेश में खेल खेला, राजस्थान की बारी आपके आशीर्वाद से बच गए हम लोग। पर जो सुनते रहते हैं कि महाराष्ट्र हो, चाहे वो छत्तीस अपने झारखंड हो, चाहे वो कोई राज्य हो, उनकी बारी कैसे लगे। जब हम ये बातें सुनते हैं तो आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या होगा। इन स्थिति में हम लोग चाह रहे हैं जो बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। मैडम सरकार को परवाह नहीं है कि क्या कितने एक्सपर्ट कोई बात कह दे देश के अंदर, इकोनॉमिस्ट कुछ भी कह दे, आरबीआई के गवर्नर है वे कुछ भी कह दे, और तो पीएम के जो एडवाइजर थे इकोनॉमिक के उनकी अपनी राय आ गई। पर फिर भी सरकार को कोई चिंता ही नहीं है, कुछ पता नहीं। आर्थिक व्यवस्था को लेके लोगों को विश्वास ही खत्म हो गया। सरकार कोई उसके बारे में विचार नहीं कर रही कि सोच भी नहीं कि क्या होगा राज्यों का। स्थिति बड़ी विकट होती जा रही है और हर फैसले उल्टे हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम, मेरे पास आंकड़े हैं किस प्रकार से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही है लगातार, सेस और सरचार्ज बढ़ाए जा रहे हैं और $115 प्रति बैरल से लगा करके $19 पे आ गए। तभी लगातार प्राइस बढ़ रही है। पूरा पहले केंद्र सरकार ले रही है, डिविजनल पूल जो होता है राज्यों को मिलने वाला उन पर कटौती हो रही है। इस प्रकार से स्थिति बन गई है। तो ये स्थिति में हम लोग चल रहे हैं और कोरोना में जो काम किया वो बेमिसाल किया राज्य ने, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने भी यहाँ पर सोशल कमिटमेंट भी पूरा किया, हेल्थ एक्सपेक्ट बढ़ाया हम लोगों ने। और आज स्थिति है कि राजस्थान वो राज्य जहाँ पर पॉजिटिविटी की रेट जो है 3.38% है, जो सबसे अच्छी रेट है यहाँ पर। बाकी जगह नेशनल लेवल पर 8.78% है। फर्टिलिटी रेट जो है राजस्थान 1.34% है, जो सबसे कम है देश के अंदर। और तो और रिकवरी रेट जो है वो इतने अच्छे प्रयास किए कि हमारे यहाँ पहले पूना और दिल्ली जाती थी टेस्टिंग, अब करीब 50,000 टेस्ट पर डे हो रहे हैं। और हमने ऑफर किया पड़ोसी राज्यों को भी, जो जब आप हमारे यहाँ से टेस्ट करवा सकते हैं। रिकवरी रेट 79.27% है। तो ओवरऑल हमारे कोरोना को लेके हम लोगों ने काफी कुछ किया है। उसका मैं समझता हूँ कि अच्छा इम्पैक्ट भी है जनता को। सोशल सिक्योरिटी में हमने पेंशन भी कायम रखी, 6 पेंशन दे दी हम लोगों ने। साथ में हम लोगों ने से उनके लिए अलग से व्यवस्था करी। करीब हमने 32 लाख लोगों को 3 किस्तों में हमने 3,500 रुपये दिए, गेहूँ फ्री दिए हैं, दालें फ्री दे रहे हैं। परंतु स्थिति जो विकट बनी हुई है उसको देख के हमें चिंता हो रही है कि आने वाले वक्त में अगर भारत सरकार ने टाइमली कदम नहीं उठाए तो स्थिति और बिगड़ सकती है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। क्योंकि अभी तक तो हमने इतना अच्छा काम किया है कि पब्लिक में भी शांति बनी रही। सब तरह से दानदाताओं के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से, सोसाइटी आगे आई, एक्टिविस्ट आगे आए, कुछ कमी नहीं रखी। लोगों में कॉन्फिडेंस रहा कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। तो जिस प्रकार के हालात बना रखे हैं, तो मेरा मानना है मैडम कि पहले भी आपने एक बार अकाल सूखा पड़ा था, तब आप हमें सभी मुख्यमंत्री को लेके गई थी प्राइम मिनिस्टर के पास में, वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर। उस वक्त में हमने देखा कि बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ा था, काफी कुछ हम लोगों को सहूलियत मिली थी। वक्त आ गया कि मैं समझता हूँ जितने हमारे मुख्यमंत्री साहबान हैं हम सब आपके साथ चलें, या तो प्राइम मिनिस्टर से मिले, अपनी बात करें, राष्ट्रपति से मिले। हमें एक इश्यू बनाना पड़ेगा। इश्यू बनाए बगैर मैं समझता हूँ मैडम ये ध्यान देने वाले नहीं। स्थिति बड़ी विकट है, जितनी हम बोल रहे हैं तक उससे ज्यादा विकट स्थिति है। क्योंकि बातें मेरे पूर्व वक्ता बोल चुके हैं, उन बातों को मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आम जनता दुखी है, वो खुद चिंता में है, सरकार को ध्यान दे नहीं रही है, इकोनॉमिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, परचेजिंग पावर लोगों का है नहीं। तो अगर
फिजिकल डेफिसिट के मतलब चल रहे हैं। और अगर हमने परचेजिंग पावर नहीं बढ़े लोगों की, कंपनी के पैसे को, तो दुकानदारों का सामान बिकेगा नहीं तो फैक्ट्री कहीं चलेगी। तो सवाल ये है कि जब तक सरकार आगे आकर के इमदाद नहीं करेगी राज्यों को भी और पब्लिक को भी, पैसा नहीं जाएगा जेब के अंदर, परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, तो इकोनॉमी ठीक होने वाली भी नहीं है। और ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैं समझता हूँ पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। सारे इकोनॉमिस्ट क्या बोल रहे हैं सबको मालूम है। ये हमारे लिए बहुत चिंता कैसे बना हुआ है। तो मैडम मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये जो बात हुई है एग्जाम के बारे में सबके राय एक ही है कि जब खुद एग्जाम पर आ रहा है, सामने अमेरिका का भी आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में पाठशाला खुद को जाना चाहिए। जब आम राय लोगों की है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद जाए सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर रिव्यू पेटिशन लगाए और कोई रास्ता निकाले जिससे कि ये जो प्रॉब्लम आई है वो हल कर सके। बाकी जो आपने हमें पत्र लिखा है पर्यावरण को लेकर के, उसके ऊपर हमने पाठशाला पे दबाव डाला भी है। हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई हो, वरना आने वाले वक्त में तकलीफ हो सकती है। इस प्रकार की स्थिति जो एकदम फेडरल स्ट्रक्चर देश के अंदर है और उसकी धज्जियां उड़ रही है, जिस प्रकार से सरकार का बिहेवियर है सबके साथ में, वो उचित नहीं कहा जा सकता। डेमोक्रेसी के अंदर पार्टी बात सुननी पड़ती है, सबकी बात सुननी पड़ती है। और ये सरकार जो है उनको कोई अपना एजेंडा जो आरएसएस का है उससे मतलब है, एजेंडे को पूरे करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। और जो चिंता वास्तव में होनी चाहिए सरकार को, राज्यों की स्थिति क्या बनी उसको देखते हुए, कोरोना को देखते हुए, उसकी कोई चिंता नहीं है। और ये बात हम सब के लिए बहुत ही चैलेंजिंग बात हो गई है। तो चाहूंगा मैडम कि सबकी राय बने तो हम लोग जाकर के बात करें और दो बात बताएं कि स्थिति ये बनी हुई है, आंकड़े क्या कहते हैं सबके सामने है। खाली तथ्यों के ऊपर बात हम कर रहे हैं, कोई पोर्टल बात नहीं कर रहे हैं। स्थिति ऐसी बिगड़ गई राज्यों की, कोई सोच नहीं सकता। ये स्थिति है। इसलिए मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा। आपने अच्छा किया, कम से कम हम सबको एक साथ बैठाया, बातचीत करी। और मेरा मानना है कि आने वाले दिन उसका असर पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू। भूपेश जी। आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय ममता जी, आदरणीय कैप्टन साहब, गहलोत साहब, ठाकरे जी, सोरेन साहब, बहुत सही समय में आपने ये बैठक की है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और लगातार इन समस्याओं को अब पार्टी उठाती भी रही है और आज विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच में इस मुद्दे को आपने उठाया और सभी मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी राय दी है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। जहां तक कि जीएसटी का मामला है, हम लोग उत्पादक राज्य हैं और इस कारण से 2022 तक हम लोगों को कंपनसेशन देने की बात कही गई थी, लेकिन पिछले 4 महीने से किसी भी राज्य को कंपनसेशन की कोई एक पैसा भी केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। जबकि आवश्यकता अभी जो स्थिति है 2022 से बढ़ा के बल्कि 2027 तक की किया जाना चाहिए। इस प्रकार का प्रस्ताव जो उत्पादक राज्य हैं वहां से होना चाहिए। मैं इस मत का हूं। अभी हम लोगों को जो पैसा मिलना था 2828 करोड़ वो नहीं मिला है और इसके कारण से जो स्थिति है वो भयावह होती जा रही है। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि कल केंद्रीय वित्त मंत्री जी बैठक ले रहे हैं, लेकिन एजेंडा कुछ भी नहीं है। कहा जा रहा है ब्रेन स्टॉर्मिंग किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि जो खबरें छन के आ रही है वो बहुत ही डरावना है। वो इस मामले में कि यदि 4 महीने से पैसा नहीं दिए हैं और यदि कल ये फैसला ले लिया जाता है कि जो कंपनसेशन की राशि उसको नहीं दी जाएगी तो उत्पादक राज्यों की हालत और बहुत खराब हो सकती है। दूसरा जो इशू है जिसके बारे में सोरेन जी ने जो बातें कही कि जो पर्यावरण के संदर्भ में, तो ये तो बहुत भयावह है कि यदि कोई उद्योग लग जाए और उसके बाद वो सारे कानून का नियम का पालन करेंगे
मुझे एक घटना याद आ रही है। जमुना किनारे एक मंदिर बना था और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में कहा कि कानून के हिसाब से तो गलत बना है, लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपया, 150-200 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, तो इसलिए इसको हटाया जाना तो ठीक नहीं है। तो उसी प्रकार से बात आएगी, यदि जो कानून बना है, पैसा कानून बना है, पर्यावरण कानून बना है और उसको पालन किए बिना यदि उद्योग लग जाए और लगने के बाद यदि वो कानून का पालन नहीं करेंगे तो आखिर में फिर हम न्यायालय भी जाएंगे तो कहा जाएगा कि भाई सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो गया है, लग गया है, इसको हटाया जाना राष्ट्रीय क्षति होगी। तो ये जो कानून आया है वो बिल्कुल ही गलत है और जो EIA जो ड्राफ्ट है उसका हम लोगों को कड़ा विरोध करना चाहिए। दूसरा, जो कृषि के मामले में जो मंडी का जो मुद्दा है, जिसे कैप्टन साहब ने विरोध किया था और हम लोग भी भारत सरकार को एक पत्र लिखे हैं कि यदि इसको कोई भी मंडी में कहीं भी जाके बेचा जा सकता है और राज्यों को मंडी शुल्क लेने का अधिकार छीन जाएगा, तो राज्यों को जहां राजस्व की कमी होगी वहीं हमारे छत्तीसगढ़ में करीब 80% जो कृषक हैं वो मार्जिनल फार्मर है और वो कहीं पंजाब में जाके या राजस्थान में या महाराष्ट्र में बेचने जाएंगे नहीं, उसको तो यहीं से मंडी में बेचना है। तो उसका लाभ केवल व्यापारियों को, बिचौलियों को होगा, छोटे किसानों को नहीं मिलेगा। इसलिए उसके मैं आवश्यकता नहीं समझता, उसको वापस लिया जाना चाहिए। तीसरा, जो शिक्षा नीति के बारे में सभी लोगों ने बात कही, अभी परीक्षा के मामले में तत्कालिक मुद्दे पे सभी मुख्यमंत्रियों ने जो बात कही है उससे मैं भी सहमत हूं, चाहे वो राष्ट्रपति के पास जाना पड़े, प्रधानमंत्री के पास जाना पड़े या फिर कोर्ट जाना पड़े, लेकिन वहां तो जाना चाहिए। लेकिन उसके जो लॉन्ग टर्म जो शिक्षा नीति जो लाए हैं उसमें हम लोगों को विचार करना चाहिए। जो शिक्षा नीति लाए हैं निश्चित रूप से ये राज्यों के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि जो नीति लाए हैं उसमें पहले कक्षा 1 से 5 तक के प्राइमरी का था, उसके पहले 2 क्लास और 3 क्लास और जोड़ दिए हैं, जो आंगनबाड़ी उसको भी कर दिए हैं। तो ऐसे में वो आंगनबाड़ी को यदि क्लास उसमें आप जोड़ देते हैं तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, फिर शिक्षकों की भर्ती, मान लो 30,000 हमारे यहाँ आंगनबाड़ी है तो 30,000 शिक्षकों की भर्ती भी करनी पड़ेगी और इस मामले में भारत सरकार ने कुछ नहीं कहा है। उसकी स्कूल बिल्डिंग कैसे बनेगा, फिर वो क्लस्टर में करने की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो आदिवासी अंचल है वो बहुत दूर दूर में है और उसके वैसे भी फिर ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये जो नीति है ये बहुत ही भ्रामक है और पूरा सेंट्रलाइज करने की बात कही जा रही है। तो फिर जो हम अपने प्रदेश के बारे में कुछ बताना चाहते, शिक्षा में जोड़ना चाहते थे, हम अपने प्रदेश में जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए जो नीति जो बनाए हैं उसका विरोध किया जाना चाहिए। और फिर एक बात और कही जाती है, जैसे अभी हमारे यहाँ जो 8 सब्जेक्ट ले तो उसे BA डिग्री मिलती है, जो साइंस ले वो BSc की डिग्री मिलती है, लेकिन भारत सरकार अब जो नीति लाई है उसमें ये कह रहे हैं कि आप इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, आप फिजिक्स भी ले सकते हैं। अभी स्थिति ये है कि हम अपने स्कूलों में, कॉलेजों में जो सब्जेक्ट के जो टीचर हैं उसे बहुत मुश्किल से भर पाए हैं। सुदूर अंचलों में तो वो उन विषयों के टीचर भी नहीं मिल पाते। ऐसे में जब अलग अलग सब्जेक्ट के एक कोई भी जो स्टूडेंट है यदि वो अलग अलग विषयों को ले लेंगे, साइंस के भी और आर्ट के भी और कॉमर्स के भी, तो फिर इतने सारे शिक्षकों की भर्ती करना, उसको उपलब्ध कराना, ये तो बहुत ही खर्चीला होगा। लेकिन भारत सरकार इसमें वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार से होगी इसके बारे में मौन है, जो इस विषय में भी हम लोगों को बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अभी सोरेन साहब ने जो कोल ब्लॉक के बारे में जो बात कही है, और पूरे देश में जो स्थिति है वो प्राइवेटाइजेशन का चल रहा है, चाहे वो एयरपोर्ट का हो, चाहे वो रेल का हो, चाहे सेल का हो, जितने भी इंडस्ट्री हैं सबका निजीकरण
कर रहे हैं। तो आज जो स्थिति बनी है, जो 70 साल में हमारी सरकारों ने जो विभिन्न संस्थान सार्वजनिक उपक्रम बनाए हैं उसको लगातार बेचते जा रहे हैं। तो अब जो आवश्यकता है वो इंडिया अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, इंडिया अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन की लड़ाई हम सबको लड़नी पड़ेगी, क्योंकि केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक के जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं उसे बेचा जा रहा है और एक एक करके बेचते जा रहे हैं और हम राज्य के लोग चुपचाप बैठे देखते रहे। कहीं कहीं विरोध हो रहा है, केरल के विधानसभा में पारित हो रहा है, कहीं और विधानसभा में पारित हो रहा है। इससे हम लोगों को सामूहिक रूप से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ में पिछले समय जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब हमारे यहाँ बालकों को बेच दिया गया, एल्युमिनियम प्लांट था। अभी जो नगर नार में जो स्टील प्लांट अभी बना ही नहीं है उसे बेचने की सूची में उसे जारी कर दिया गया, उसमें रखा गया है। हम लोगों ने इसे विरोध में पत्र लिखा है कि इसे निजी हाथों में न बेचा जाए, लेकिन यदि ये बेचा जाता है तो हम लोग विरोध करें, क्योंकि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सभी राज्यों के बिकने के कगार पे हैं। बहुत सारे राज्यों में निजी हाथों में चला गया, बहुत सारे राज्यों में जाने वाले हैं। तो ये जो इंडिया अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन है इसको हम लोगों को लेके लड़ना चाहिए। हमारे यहाँ कोल ब्लॉक की नीलामी, पिछले दिनों कोल मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे राज्य में कोयला का खदान है और हमारे पास भी एक कोयला खदान नहीं है छत्तीसगढ़ के लिए। तो बोलते हैं कि जो नीलामी होगी उसमें आप भी ले लीजिए, तो वो हमारे ही खदान है, हम ही खरीदें। ये बात अजीब सी है। सुरेश जी ऐसे हुआ था ना, तो ये पूरे जंगलों को उजाड़ के यदि इस प्रकार से किया जाएगा और निजी हाथों में बेचा जाएगा, उनका कहना है कि 50 साल में कोयले के रिलेवेंट नहीं रह जाएगा, तब तक के दूसरे कोई चीजें आ जाएगी। लेकिन आज जैसे हम भले रॉकेट के युग में आ गए हैं, लेकिन बैलगाड़ी समाप्त नहीं हुआ। यदि हम कितना भी दूसरे पावर के लिए दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं, लेकिन कोयला आधारित जो पावर है उसकी महत्ता कभी कम होने वाली नहीं है, उसकी उपयोगिता बनी रहेगी। तो इस समय हम लोगों को इस मामले में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। झूठ बोलते हैं, उनको लगता है बाकी सब लोग मूर्ख हैं, वही एक समझदार है। स्थिति यही है जापान में कि जो न्यूक्लियर पावर है सर, जापान में जितने भी न्यूक्लियर ये सब पावर बनते हैं वो सारे इंडस्ट्री बंद हो गए, मालूम है? ऐसा नहीं है, ये लोग बेवकूफ बना करके चोरी कर मतलब डकैती डालने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं जो जीएसटी के मामले में मैं तो फिर से कहूंगा कि यदि आप नहीं दे सकते तो राज्यों को फिर से वो अधिकार देना चाहिए। जो औद्योगिक जो हमारा उत्पादक राज्य है उसे कम से कम जो उत्पादन के जो पॉइंट है उसमें हमको टैक्स लगाने की अनुमति मिलना चाहिए। यदि भारत सरकार नहीं कर सकती तो वो अधिकार हम लोगों को वापस दिया जाना चाहिए। अभी प्रजातांत्रिक मूल्यों की जहां तक बात है, सभी लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। सभी मुख्यमंत्री जितने भी आईटी है, सीबीआई है, ईडी है, इसका जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है वो सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको महसूस कर रहे हैं, उस दबाव को। लेकिन इस मामले इस लड़ाई में अशोक गहलोत जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि 1 महीने से लंबे समय तक के वो लड़ाई लड़े भी और सफल भी हुए और उन्हें पटकनी देने में सफलता मिली। इस कारण से मैं अशोक जी को बहुत बधाई देता हूं, कि उनके सूझबूझ को भी बधाई देता हूं कि वो जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में, कर्नाटक में सफल हुए, लेकिन राजस्थान में वो परास्त हुए हैं। तो वो जो अवैधानिक कृत्य कर रहे थे उसको रोकने में उसके अशोक जी को सफलता मिली, उनके साथियों को सफलता मिली। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और इसी प्रकार से ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको बनाए रखने के लिए हम सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि बहुत सारे विषय आ चुके हैं। बघेल सर एक निवेदन है आपका, उस पर क्या राय है? जो ये नया टैक्सेशन सिस्टम लाए हैं फेयरलेस, और ये जो नए अभी कल परसों इन्होंने घोषणा किया है कि अब जो टैक्स कलेक्शन वाला सिस्टम जो नए तरीके से इन लोग इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी बहुत बड़ा झोल है।
कल इसमें तो चर्चा होगी ना, कल तो बुलाए जीएसटी मिनिस्टर को। हाँ, और उसमें कल स्पष्ट होगा। इसमें भी गड़बड़ी है। इनका कहना है कि अब कंप्यूटर के द्वारा लोगों का, ये ऑफिसर लोग का चयन होगा। अरे ये तो ह्यूमन बीइंग ऑपरेटेड सिस्टम है, उसमें कभी बड़े लोगों का नाम ही नहीं आएगा। सारे छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे व्यापारी लोग इसमें फंसेंगे। और इनका बड़ा स्ट्रेटेजिकली ये है कि अपने बड़े बड़े सहयोगियों को बैंकों का फायदा और टैक्सेशन का चोरी कराने का एक रास्ता ये लोग तैयार कर रहे हैं। देखिए, जो बैंक इंदिरा जी के समय में आम जनता के लिए खोला गया है, अब वो बैंक धीरे धीरे खत्म भी होते जा रहे हैं। बैंकों में डकैतियां भी हो रही है और बैंक है वो केवल बड़े लोगों के लिए ही रह जाएगा, ये स्थिति है। तो इसमें तो हम सबको, गरीबों को तो कोई लोन मिलता हमारे यहाँ तो नहीं है। बैंक को वो भी बंद हो रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे इशू हैं, आर्थिक जो मुद्दे हैं उसके तरफ से ध्यान हटाने की पुरजोर कोशिश वर्तमान सरकार कर रही है। और हम लोगों को आर्थिक मुद्दों को लेकर, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे छोटे व्यापारी हों, इन सबके मुद्दों पर व्यापक रूप से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाते हुए हम लोगों को काम करने होंगे, ऐसा मैं महसूस करता हूं। मैडम, आपने समय दिया और सुझाव लिए, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। नारायण स्वामी जी। Honorable Congress President, Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee ji, Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Uddhav Thackeray ji, Honorable Chief Minister of Rajasthan, Ashok Gehlot ji, Honorable Chief Minister of Punjab, Shri Dr. Amarendra Singh ji, Honorable Chief Minister Chhattisgarh, Bhupesh Baghel ji, Honorable Chief Minister of Jharkhand, Shri Hemant Soren ji, I wholeheartedly welcome you all. I heard all your speeches. I'm very happy that the Honorable Congress President called the like-minded Chief Ministers, Congress Chief Ministers and like-minded Chief Ministers. First of all, I would like to say that in the initial remark that has been made by Honorable Chief Minister of West Bengal, is a very serious issue. NEET exam and JEE exam. We are on a different footing. When our Honorable Chief Minister of West Bengal came to Chennai, the issue was also raised to her. The NEET exam, which has been proposed by the government of India, has been opposed by our government and also DMK party. The reason is that we are conducting the exam in the state board. The government of India conducting NEET exam on the basis of CBSE. Our poor children belonging to the villages, scheduled caste, scheduled tribe, OBC children who are studying in government schools, when on the basis of the mark obtained in 12th class, the scheduled tribe people were getting medical classes, engineering courses. Scheduled caste children were getting, rural people were getting. Today, when madam, the NEET exam came, the rural people have been eliminated. The people who studied in the state board, they are eliminated. The children belonging to the richer class who studied CBSE, they are getting elected. Madam knows pretty well, more than 7 children committed suicide in Tamil Nadu. When the board exam was announced, NEET exam was announced, for the last 3 years, 7 children committed suicide, fearing that they will not pass the exam. After the exam they failed, they committed suicide. Therefore, our Congress government in Puducherry and also the DMK party took a stand that NEET exam is to be scrapped, and we wanted on the basis of the mark obtained in the 12th class, the children should be admitted.
in the medical course and also in the engineering course and other professional courses. Why NEET exam should be conducted? The basic question is that. Therefore, Madam, I join with all the Honorable Chief Ministers of the Congress ruled states and our supporting ruled states. We will all join together and fight the battle in the Supreme Court, and we will try to get justice for our children during this COVID pandemic situation. Conducting exam will lead to increasing COVID cases in the country. Lot of children will be affected, and some of them will be severely affected. Who is responsible for it? The Government of India is responsible for it. Therefore, the Government of India should review it. I wrote a letter to Honorable Prime Minister yesterday. I told him that postpone JEE examination as far as our state is concerned. Cancel NEET examination. But Madam, I will join with them. We will go to the court. I agree with the Honorable Chief Minister of West Bengal. We will jointly fight the battle against the central government on this issue. Madam, during this COVID situation, ours is a small state, but our revenue has dropped. In the month of March, we got only 30% revenue. In the month of April, it was 45%. In the month of June, it was 55%. In July, it is 60%. 40% revenue shortfall is there. Madam, I am a member of the GST Council. I attended so far right from Arun Jaitley today, Madam Nirmala Sitharaman, about 33 meetings I attended as the Finance Minister of the state. I raised several issues along with the Honorable Chief Minister of Punjab, Honorable Finance Minister of Punjab, Honorable Finance Minister of Rajasthan, and also Honorable Finance Minister of West Bengal. We jointly raised several issues. But this was a solemn commitment given by the Government of India in the bill, in the GST bill, that the Government of India will compensate for 5 years all the states, the loss of revenue incurred to those states. Madam, if we are allowed to freely tax our people, we know how to raise the resources, how to raise the revenue. But that power has been taken over by the government. Though it was brought by our government, it was one tax. We wanted that one tax and for the people in a simple way. But they totally messed up, and they said 0%, 5%, 12%, 24%, then 32% and 54%. By doing this, the Government of India is getting revenue and the state is not given due compensation. How can, Madam, the Attorney General give an opinion when it was a solemn commitment given by the Government of India in the Parliament and also to the states in the GST Council that 14% compensation will be given to all the states and bi-monthly, irrespective of the fact whether the Government of India gets revenue, sufficient revenue or not. Now they are taking the plea. In fact, in the last meeting in the virtual conference, I raised the issue with the Nirmala Sitharaman. Madam, I told her, this is a commitment given by you. How can you go against it when the Government of India is violating its own policy, principles and the law? How can you expect the state government to do that? But unfortunately, Madam, she said we will go for a market borrowing. I told her whether you go for a market borrowing or you get it from Reserve Bank of India, it is your baby. But you have to give us the compensation. For the last 4 months, all the, including BJP ruled states, they are all raising the voice. But so far, no reply coming from the Government of India for that. And unfortunately, the Finance Secretary goes to the Standing Council, Finance Ministry Standing Council, and he says that we have no money. That means that the Government of India has become bankrupt. When they say we don't have money, it's a shame on the part of the Government of India. Government of India can say that. Government of India has to pay, whereas, Madam, I am one of the state who is fighting against the Government of India and also Lieutenant Governor. The same is the case with Madam Mamata Banerjee. She is fighting against the Government of India and also Governor every day. Can you imagine, Madam, in our state, Puducherry, the Lieutenant Governor said she will come and address the House when I called the Assembly session. She gave approval.
She did not come. But I read the budget. I didn't bother about her. After 3 days, she came to the house and addressed the house. Therefore, we are fighting battle every day against these people. But we don't bother. Whether we remain in power or not, we will uphold democracy. We will uphold values. The cooperative federalism which Narendra Modi is telling every day, Prime Minister, cooperative, where is cooperative federalism? It's a dictatorship. He is trying to impose everything on the states. The East agenda he wanted to impose. When the Hemant Soren said, even the Honorable Chief Minister of West Bengal said, the Prime Minister's health scheme, they are giving only 40%. We give 60%. They say it has to be Prime Minister's scheme. Money is our major part of the money is our government money. But they want to take the name for themselves. Madam, 7th Pay Commission arrears for the last 4 years. We have paid to our state government. Announced by the government of India, we paid. No compensation was not given to us. Puducherry, madam, we wanted us to be included in the 15th Finance Commission. We are getting assembly. Delhi is also assembly. All the states are getting now 51% share in the revenue. But Puducherry is getting only 26% revenue. But they are collecting more than 6,000 crores. 50% of the money comes to 3,000 crores. They are giving us only 1,700 crores. That is how they are cheating our governments. They are not paying our due share. They said, but the Delhi government, they are treating them separately. We are being treated separately, even within the union territories. Therefore, madam, the GST compensation, tomorrow in the meeting I will be attending, I will forcefully say that either you pay the compensation within a period of 15 days, otherwise you leave us, we will go for our own pattern of taxing the people. We know how to raise our resources. We don't want to come with you before a begging bowl. We will tell the Nirmala Sitharaman like that. Why do our money they take, madam? And they are not giving us the money. Therefore, madam, this is very clear from our side. The other issue which has been raised, it's a very important issue. The privatization of DISCOM. They wanted to give it to Adani. It's a very clear-cut issue. We have got an infrastructure for privatization of the power sector, they are telling. If you don't do it, we will not give you the grant. They are putting condition on us. Who are they to put condition on us? We have got an infrastructure of about 20,000-30,000 crores for power distribution system in our state. Our state government is running it. They wanted to take it over by indirect method in the name of privatization. The environmental impact assessment, they are reducing the time frame. Public hearing, they would like to go against it. New education policy. Madam, when our leader, Shri Rajiv Gandhi was the Prime Minister, Parliament debated on the new education policy. And thereafter it was approved by the Parliament. Today, there were extensive consultations. Yeah, before the policy was deliberated at all levels, including the educations and the people who are in the education field, all were called and discussed. Today, they announced, third day they said we are going to implement. But southern states are opposing it, including the, madam, during COVID situation in our state till April, there are only 3 cases. Today, it has become 11,000 cases. About 9,000 people have recovered and went home. Because the death rate is only 1.4%. The recovery rate is more than 75%. I received so far, madam, 5 video conferences I attended with the Prime Minister. In 3 video conferences I spoke. The Prime Minister said, he said, you will have to control COVID. I told him, give us money. Where is the money to the states? He said, he never answered that issue. He never answered to us at all. And now, madam, so far, we spent more than 200 crores for controlling COVID in our state, in a small state. The government of India gave us only 3 crores. Disaster Management Fund. It is not COVID money. Adjoining state of Tamil Nadu, their supporting party, they got more than 30,000 crores. The population is more, I agree. I'm not saying that Tamil Nadu should not be good. Tamil Nadu should get. But we should get our due share. Our people are also Indian. We have not come from France. Madam, this kind of the stepmotherly attitude of the central government.
in ignoring our states, the Congress ruled state, and trying to topple Congress governments. But every day we have to fight the battle against them, imposing officers on us, imposing their policy on us, even if it is a state subject interfering in that. Therefore, every state now, this is a time, madam, as I entirely agree with the Honorable Chief Minister of West Bengal, we should go to the court and then try to see that the NEET exam and also the JEE exam to be postponed. And secondly, our delegation, the like-minded political party leaders, our Honorable Chief Ministers, meet the Prime Minister and President, tell them that this is a COVID situation. The Government of India should liberally fund the states, give money to the state for the survival of the people of the state. Job loss is more than 40% in our state. Ours is a producing state. Our money goes to consuming state in the name of GST. We are at loss. We are not being compensated. Therefore, madam, this is high time that we should join together and raise our voice together. Then alone, this Government of India will come to senses. At least after hearing it, they will understand that the opposition leaders are together. Thank you, ma'am. Thank you. Sir, we are live on all platforms. नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री जी के नारों के बावजूद राज्य आत्मनिर्भरता के बजाय